السلام علیکم، میں آپ کا استاد محمد امین آپ کے سامنے اردو کے لیکچر نمبر 16 کے لیے حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، ہمارا اردو کا آج یہ لیکچر نمبر 16 ہے۔ پہلے ہم نے 2 نظمیں پڑھائی تھی اور اب ہم حصہ غزل کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی غزل ہے۔ سب سے پہلے میں مختصر تعارف کہ غزل اصل میں ہے کیا؟ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور عربی میں غزال ہرن کو کہا جاتا ہے، اور غزل کا ہر شعر اپنے اندر علیحدہ معنی رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو نظم ہوتی ہے اس کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ ایک ترتیب سے ہوتے ہیں، وہ ہر شعر دوسرے سے لنک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن غزل کے شعر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر دوسرے سے لنک کرے، غزل کا ہر شعر علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر غزل میں 2 طرح کی تشریح ہوتی ہے۔ اس میں ایک اس کے مجازی ہوتا ہے اور ایک اس کے حقیقی ہوتا ہے۔ تو غزل کے ہر شعر کی تشریح مختلف طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم غزل کی طرف چلتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم غزل کے اشعار کی تشریح کرنا شروع کریں، سب سے پہلے شاعر کا نام میر تقی میر ہے، اور میر کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میر تقی میر کا مختصر تعارف بیان کریں گے، اس کے بعد غزل کی جو اشعار ہیں ان کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 125 کھول لیجیے، بلکہ 124 کھول لیجیے۔ میر تقی میر کا مختصر تعارف ہے۔ میر تقی میر 1725 میں پیدا ہوئے، 1810 میں وفات پائی۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام میر تقی میر علی متقی تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن میں ہی والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تراشی معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرہ لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بس گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا بلکہ متاثرین نے بھی انہیں بہت سراہا۔ یہ جو مخالف تھے انہوں نے بھی اس کو بہت سراہا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خودنوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو پوائم شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ہم غزل کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 1 ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر میں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو موجودہ زندگی ہے یہ ایک حباب کی سی، حباب مطلب ایک بلبلے کی طرح۔ انسان دنیا میں آیا ہے، کچھ عرصہ یہاں پہ رہے گا، یہ اس کی زندگی کا ایک سفر ہے جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسے جیسے اگر ہم ایک کنکر پانی میں پھینکیں تو ایک بلبلہ بنتا ہے، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ پانی کے ساتھ پانی بن جاتا ہے۔ یہ انسان ایسا ہی ہے، مٹی سے بنا ہے، اور کچھ عرصہ دنیا میں رہنے کے بعد مٹی کے ساتھ بھی مٹی ہو جائے گا۔ تو شاید ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ہستی ہے اور ہماری جو زندگی ہے یہ ایک حباب کی سی ہے، اور ایک بلبلے کی طرح کی مانند ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نمائش کا مطلب یہ دنیا،
शराब, धोखा। ये दुनिया में एक धोखा है। इंसान दुनिया में है, इंसान दुनिया में अगर अपना दिल लगा लिया है, असल हकीकत जिस के लिए यहाँ पे आया था उसको ये भूल गया है। तो ये एक दुनिया में एक इंसान के लिए एक धोखे की जगह है। यहाँ दिल लगाने की उस जगह नहीं है, ये एक धोखा है। ठीक है, शेर मतलब जो है नाज़ उसकी लड़की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब किसी है। शायद इस शेर में अपने महबूब की सिफात बयान कर रहा है, कहता कि मेरे महबूब की जो नाज़ुकी है या मेरे महबूब की जो नज़ाकत है उसकी तो क्या ही कहने, मेरे महबूब के ऊँटों की जो नज़ाकत है उसके तो क्या ही कहने। जब मेरा महबूब हंसता है ऐसे महसूस होता है जैसे उसके मुंह से फूल गिर रही है, फूल झड़ रही है। उसके होंठ ऐसे जैसे गुलाब की एक पंखड़ी है, गुलाब की एक पत्ती सी है, इस तरह की। लेकिन महबूब के खूबसूरती को मीर ने इस हद तक बेहतरीन तरीके से बयान किया है कि वो बताया कि मेरे महबूब की जो खूबसूरती है, उसके लबों की जो खूबसूरती है उसके तो क्या ही कहने, ऐसे महसूस होता है जैसे गुलाब की पत्ती है। और जब वो बोलता है तो उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जैसे गुलाब की पत्तियां गिर रही हैं। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर यहाँ की औकात खाब की सी है। या इंसान इसमें भीतर भी इंसान को जो जोड़ रहे हैं, या इंसान जरा अपने दिल की आंख खोल उस भी आलम पर, उस आलम से मुराद आखिरत, मरने के बाद जो आलम होगा उस आलम पर। अगर आप उस आलम को अजीज तलबा, ये हकीकत है कि अगर हमने आखिरत के आलम को पहचान लिया, दुनिया की औकात एक ख्वाब क्या है, इंसान सोया हुआ कुछ अर्से बाद इंसान उठ गया, उसका ख्वाब खत्म हो गया। ये जिंदगी ऐसी है कि थोड़ी सी जिंदगी उसके बाद ये खत्म हो गई। तो ऐ इंसान अगर अपनी दिल की आंख को खोल और उस आलम को देख, क्योंकि यहाँ की जो हकीकत है वो एक ख्वाब की सी है, यानी कि मुख्तसर ख्वाब मुख्तसर दौरान जिंदगी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। इस शेर में शायर जो है वो अपने महबूब के घर का तज़किरा कर रहा है। मैं अपने महबूब के घर की तरफ रोज़ रोज़ जाता हूँ, बार बार जाता हूँ। क्यों? कि मेरा दिल करता है कि मैं मेरे मुझसे मेरे महबूब घर रहा नहीं जाता, मैं बार बार अपने महबूब की तरफ जाता हूँ, उसके घर की तरफ जाता हूँ, दरवाजे की तरफ जाता हूँ। क्यों? कि मेरी जो हालत है वो एक इस तरह बेचैनी की सी है। रोज़ कहता हूँ, शायरी में एक शायर का बड़ा अच्छा शेर है, रोज़ कहता हूँ कि आप उसके मोहल्ले में नहीं जाना, रोज़ उसी की गली में काम निकल आता है। मैं तहैया करता हूँ मैंने अब उस तरफ नहीं जाना, लेकिन मेरी बेचैनी, मेरी इस तरह की कैफियत मुझे वहाँ करने थी। रोज़ किसी न किसी बहाने से उसके दर की तरफ, उसके दरवाजे की तरफ, उसकी गली की तरफ निकल जाता हूँ। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उस खाना खराब नहीं सी है। तो अजीज तलबा, इसमें मीर तकी हमें इसी में बता रहे हैं कि जब मैं अपने महबूब के पास जाकर उसकी गली में, उसके मोहल्ले में जाकर आवाज़ देता हूँ, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये वही खाना खराब है जो हर रोज़ मुझे परेशान करने आता है, क्योंकि महबूब मुझे डांट रहा है। महबूब जो है, क्योंकि महबूब बेसिकली ज़ालिम है ना, तो जो मुहिब होता है वो मज़लूम होता है, तो वह महबूब उसको डांट रहा है। आपसे गम में दिल गुना शायद देर से वो कबाब किसी है, यानी कि मुझे अपने महबूब की जुदाई में ये इतनी आग लगी कि ऐसे मेरा दिल भुन गया, जल गया, ऐसे महसूस होता जैसे एक कबाब की सी बदबू आ रही है। कबाब अजीज तौर पर अच्छी तरह जानते हुए जो कोयलों पे, दहकते हुए कोयलों पे पकाया जाता है वो कबाब है, मुझे खास खुशबू होती है। तो शायद यही कह रहा है कि मैं इस तरह अपने महबूब के गम की आग में इस तरह भून गया कि जैसे कोयले पर कबाब को भुना जाता है। इतनी मैंने मुसीबतें बर्दाश्त की अपने महबूब के लिए। तो मीर उनकी नींदबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है कि इसमें इस शेर में शायद हमें ये बता रही हैं कि महबूब की आधी खुली जो आंखों का नशा है, नींदबाज आंखें, मतलब आधी खुली हुई आंखें, महबूब की जो आधी खुली हुई आंखों में एक जो नशा है वो इस तरह है जैसे
महबूब की आंखें देखकर उसकी हाजत जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो अजीज तलबा, इस शेर में जिसमें मीर ने अपना तखल्लुस बयान किया है, इस शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो मीर उनकी नींदबाज आंखों में, मेरे महबूब की जो आधी खुली आंखें ना मस्ती वाली, वो ऐसे महसूस होता है जैसे उनकी जो आंखें हैं वो उनमें इतनी मस्ती है, शराब की मस्ती है। तो अजीज तलबा, ये हमारी एक गज़ल थी, इसको हमने पढ़ा है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। कबल इसके कि हम एक्सरसाइज को देखें, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो। नाज़िकी, नज़ाकत, पंखड़ी, फूल की पत्ती, इज़्तिराब, बेचैनी, औकात, हैसियत, शराब, धोखा। तो जी तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 126 126 खोल लीजिए। वहाँ पे कोई चंद सवालात हैं और वो मुमकिन सवालात हैं जो बोर्ड पे आ सकते हैं। इस गज़ल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं? रदीफ के अल्फाज तलबा, रदीफ ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो बार बार आते हैं। यहाँ पर बार बार आने वाले लफ्ज़ जो कीसी है, कीसी के रदीफ के अल्फाज हैं, इनका बार बार इस्तेमाल हुआ है। इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफियों की निशानी है। काफिया ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जो मिलते जुलते होते हैं, जैसे हवा, शराब, गुलाब, ख्वाब, कबाब वगैरह। दूसरे शेर में होंठों को किस तशबीह की गई है? तो शायर ने इस गज़ल के दूसरे शेर में अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह की है ना। हमने शेर कि नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, उसने गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। नींदबाज आंखों की मस्ती को क्या करार देते हैं? नींदबाज आंखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार देते हैं। शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? तो शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार अपने महबूब की तरफ चला जाता है, अपने महबूब के मोहल्ले में चला जाता है। तो अजीज़ तलबा, ये हमारी गज़ल नंबर 1 थी जिसका लेक्चर मैंने आपको दिया है। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो इसको इस तरह देखिएगा, पढ़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।